जब हम कैरेक्टर के बारे में सोचे थे शहबाज भट्टी, तो हमने डिसाइड किया था कि लिविंग हैंड टू माउथ, पेचेक टू पेचेक, स्ट्रगल कर रहा है एंड ये वो इंसान है जिसके ज़िंदगी में बस आगे बढ़ना सबसे ज़रूरी है। एक ज़िंदगी सेट करना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रीमलाइन सी ज़िंदगी है। He knows what he wants to do, just wants to grow in his own career, in his own profession as a journalist. It was really important for us to have the actor who can understand the nuances and intricacies of the character and plays it really well. जब शहबाज भट्टी का करैक्टर, ये किरदार विजुअलाइज हुआ था और क्रिएट हुआ था, फ्रॉम वेरी डे वन आई वाज वेरी मच क्लियर कि अहमद अली अकबर इसको प्ले करें। 10 मिनट बाद चाहिए तो जो असल जो कैरेक्टर है, जो बच्चा, जो इन्वेस्टिगेशन इस फिल्म के लिए या जो रिसर्च इस फिल्म के लिए की गई थी, जैसे जैसे वो खुली है वैसे ही आपको इस कैरेक्टर की ये नज़र से ये इन्वेस्टिगेशन खुलती हुई नज़र आएगी। एंड in these 14 days Shehbaz Bhatti goes through, I think, I would say one of the bigger changes in his personal life. I felt like मैं उनको पढ़ रही हूँ before action is called. He's here in front of you, and as soon as action or role हो चुका है, he's a different person. He's his own character. उनकी आँखों के अंदर you see that अच्छा, he's no longer here. दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। जिस तरह की कंडीशन में हम लोग थे, वो उस तरह की कंडीशन में खुद भी रहने को तैयार होता, वो रहता था। He has been through everything with us. कट ठीक है ना, कट करवाया ताकि वो गिरे ना। हाँ हाँ ठीक था, इतना टाइम ठीक था। हाँ बिल्कुल। As a person, he's a great guy, very down to earth. As an actor, he is one of the finest actors in our industry. Very fulfilling, and I think I'm very proud to be a part of this story. ये शहबाज भट्टी की नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से है, शहबाज की नज़र से कहानी होगी, बट ये उसकी कहानी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की कहानी है। Resham, of course, is one of the finest and versatile actors. She has done an amazing job playing the role of Madam Sarwat. Because Madam Sarwat का जो रोल है, ये एक strong woman का रोल है, और we really wanted to show a woman in a very strong role. I think through Madam Sarwat we have accomplished that. रेशम आपको बहुत अरसे बाद इस तरह से पावरफुल रोल में नज़र आएंगी। रेशम जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है, हमारी इंडस्ट्री का एक कीमती हिस्सा है। क्योंकि आउटडोर भी और भी साउंड डिस्कस कर रहे हैं, लाइव साउंड। Behind the resistance in Punjab against Resham was amazing to work with. क्योंकि just such a big name, and I was so intimidated on the first day from Resham, obviously. A ball of energy. She's a veteran. She's a household name. Who doesn't know Resham? She looks amazing, and she's got amazing screen presence. I think she brought a really classic flavor to the film. कि रेशम एक ऐसे किरदार में आपको नज़र आएंगी कि जो कि उनके ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी और उनके स्टेटस से मैच भी करता है और फिल्म को बहुत अमेजिंगली कॉम्प्लीमेंट करता है। मेहर एक बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही पैशनेट और जो भी ज़िंदगी में उसका जो उसने बनाया हुआ है, her purpose of life, she really believes in it and she is fighting for it. So it was it's a very layered character. This character has a lot of weight in terms of you know, she's filled with this weight of guilt and I would say pain, and so she has a lot of these things in her character.
मेहर का कैरेक्टर ऐसा है कि इट पुल्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, बिकॉज एज अ ह्यूमैनिटेरियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, it pulls you towards itself. Meher actually shows you how you can help. She's very outspoken. She has done, Amna Ilyas as Meher has done a wonderful job. Cut. Amna Ilyas was always Meher for me. Whenever I saw Meher, I always saw Amna Ilyas in that role. So she was always my first choice. I mean, everybody says कि हमारे लिए हर character challenging होता है, but this really was something very, very different for me, that I was very scared actually to do it in the beginning. But my director, Shoaib Sultan, he really helped me in, crafting this Meher's character, telling me what's her strengths are and what's her weaknesses are, and what she really believes in and what kind of anger or frustration she carries within herself. तीन कट्स में हम कर रहे हैं, हमने डिजाइन की है, ठीक है? 3 सेकंड करना, ठीक है? तो विल टेक एंड ओपन कर देना बस आप, ठीक है? हम देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल था पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे कोई फिल्म बनाएगा या इस टोन की, इस फील की कोई फिल्म बनाएगा। बट आई थिंक अगर ऐसी होती और if I hadn't been part of it, I would always still imagine Amna to be in it. For me, among everything that I was doing, this was the only project that I was actually very excited about. He's a politician, and he's part of this carpet mafia. He's also running for some political. He has his own political agendas also, but he's very highly educated. Okay. I'm action. इस किरदार को अहमद से बेहतर कोई और प्रेजेंट नहीं कर सकता। दो एंगल से इसके आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद दैट रोल, कि उनका जो इमेज है वो चेंज किया जाए। सेकेंडली मुझे लगता था कि ही कैन पुल इट ऑफ सो वेल, और जो नुएंस और जो एलिमेंट मुझे इस कैरेक्टर के लिए चाहिए वो उनकी पर्सनैलिटी बहुत मैच करती थी उस किरदार के साथ। अहमद अली भट्ट डन एन अमेजिंग जॉब। Audience will love Ahmed Ali Bhatt's character in this film. All this time people have seen him doing comedy roles, but इस film में उन्होंने एक different role किया है, and he's so versatile. He has done a great job. The character itself was very multi-layered because वो हर क्लास के साथ अलग बिहेव करता है, और डीप डाउन इनसाइड उसका जो एजेंडाज है वो किसी को शो नहीं करवाता। Really influenced by him, inspired by him. I think he is one of the finest actors, comedians, singers, hosts. He is just one of the best in our country, and so fortunate to have shared the screen with him. When he said he's considering Ahmed Ali Bhatt, I was like, bahut zyada. He'll completely different avatar, completely new. He'll completely fresh use of such a talented, such a powerhouse of an actor, and he did a phenomenal job. इकबाल जो है वो 10 साल का एक गरीब लड़का है जो अहमद भाई के एक फ्लैट में काम करता है, और वो लोग 3-4 साल से जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है? और हम उस बच्चे की एनर्जी ज़रा सी भी कम नहीं हुई। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे पास किड चाइल्ड एक्टर्स हैं कि नहीं, या हैं तो कहाँ हैं, कौन है, एंड आई एम ग्लैड आई गॉट टू वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट। इस तरह के किरदार बहुत कम एक्टर्स इतने अच्छे से निभा सकते हैं। इस बच्चे ने जिस तरह से इसमें काम किया है बहुत नेचुरल लगता है, एंड टू बी ऑनेस्ट इस बच्चे को सिलेक्ट करने का जो सिलेक्शन का पीरियड था वो भी हमारा सबसे लॉन्गेस्ट था। इट टुक अस क्वाइट सम टाइम। And I'm very happy to be a part of this film. इसलिए नहीं कि ये फिल्म है, और इसलिए भी कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, आउट ऑफ द बॉक्स है, और इसका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है।
और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस फिल्म में काम करके। इधर का क्रू बहुत अच्छा है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मतलब समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये नहीं कि बिल्कुल ही एक कुछ है तो दूसरा कुछ, और मतलब करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। मोहम्मद अली ने ही डन एन अमेजिंग जॉब, वंडरफुल जॉब। बहुत छोटी छोटी नुएंसेस हैं जो उन्होंने क्रिएट की हैं। हमें एक बहुत ही सटल, एक मासूमियत और एक इनोसेंस जो है वो इस किरदार के लिए चाहिए थी। एंड व्हाट ब्रिंग ऑन टेबल बाय मोहम्मद अली इज़ जस्ट ब्रिलियंट। मोहम्मद अली का जो रोल है फिल्म के अंदर वो इरफान मसीह का है, और इरफान मसीह इज़ द हार्ट ऑफ द फिल्म, to be honest, or the way he has played the character, it's outstanding. कहता था काम करो बस। मेथड एक्टिंग होती है तो स्क्रीन पे भी वही अच्छी नज़र आती है और बहुत अच्छी नज़र आती है, और जिस मेहनत के साथ हमने किया है ये हमें ही पता है, और वो भी स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आएगा। तो हमारी मेहनत का सिला आपने देना है और इस फिल्म को ज़रूर देखना। The most important thing is an ensemble cast। मैं ये नहीं कह सकता कि एक मेल प्रोटैगनिस्ट है, एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, बल्कि इसमें बहुत सारे किरदार हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हर किरदार की अपनी एक अहमियत है। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी किरदार अगर वो एक सीन के लिए भी स्क्रीन पर आता है तो वो सीन उसी का है, वो सीन जो है वो उससे लिंक्ड है। हाँ, मतलब ये बोलना शुरू, उठते हुए बोलना शुरू कर देगा, ये आवाज आ रही है अंदर से बोली जा रहे हैं। यहाँ पे हर तरफ खेत हैं और गंदम की कटाई हो रही है, सख्त गर्मियों का मौसम है, लेकिन कभी हम लस्सी पीते हैं, कभी रूह अफ़ज़ा और कभी दूध छोले बना कर। और तुम जब थोड़ा सा डरो, जब एकदम आएगा तो डरो। तो इसमें मेरा करेक्टर लुकमान का है, जैसे हम नेचर में एक जेलसी टाइप का है, मतलब कि वो जब एक बच्चे को देखता है वो मेरे से ज्यादा अप है तो वो एक किस्म का जेलिस होता है उससे। वो बस कहता है कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ, बस अपने आप को हीरो बताने की कोशिश करता है। तो ये मेरा करेक्टर है, तो इसमें ये सारा है। और इस टाइम हमारी शूट हो रही है मरीद के में, तो यहाँ पे मुश्किलात तो आपको पता फिर आती हैं, जैसे गाँव के लोग होते हैं, कैमरा को देखते हैं, चलो भाई बस पीछे पीछे बच्चे भागते रहते हैं कि भाई हमें भी लो, हमें भी लो, हमें भी लो। रियलिस्टिक अप्रोच है इस पूरे फिल्म। कैरेक्टर जो है वो मेरी असल उम्र से 10 साल कम उम्र का है, जो कि करना मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन जब ख़ासतौर पे इस स्पेल में जब हम आए हैं तो इट बिकेम रियली रफ एंड टफ, क्योंकि गर्मी बहुत थी और बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत रियलिस्टिक होकर शूट करनी पड़ी, तो उसकी वजह से काफ़ी ऑब्स्टिकल्स थे, काफ़ी हर्डल्स थे। एक सीन ऐसा आपको इस फिल्म में नज़र आएगा जिसमें मैं अपने काम कर रहा हूँ, फाइल देख रहा हूँ, मैंने मुल्क से बाहर जाना होता है, वो बिज़नेस कर रहा हूँ, तो बिलीव करें मैंने वाकई मैंने शायद सेट पे भी शुएब भाई को बताया था कि इस तरह का सीन आज तक मुझसे किसी ने करवाया नहीं है, कि वो पूरा बिजनेस भी कर रहा हूँ, पूरे डायलॉग भी दे रहा हूँ और सामने वाले करैक्टर को नज़रअंदाज भी कर रहा हूँ, जिस तरह की मेरे डायरेक्टर साहब की एक वो थी कि यार मुझे ये कुछ चाहिए। वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सीन था वो, क्योंकि वो है ही मेरा सीन था और उसमें मुझे भी बहुत रोना था और मुझे रोना पड़ा। बहुत अच्छा वो मेरा सीन किया था और गुड़िया बहुत प्यारी थी, इतनी सी थी, प्रिंस वो एंजल जैसी अच्छी थी। शुएब सुल्तान की अगली फिल्म या वेब सीरीज़ जिसमें तमाम कैरेक्टर्स के डायलॉग मैं डब करूंगा, वो मैं फ्री में करूंगा, पूरा शो या फिल्म व्हाटएवर। वेरी गुड। मेरा ख्याल उनको इसलिए आया कि मुझे ज़्यादा एक्टिंग ना करनी पड़े, और मुझे भी कैरेक्टर सुन के ये लगा कि मुझे शायद बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि करप्ट सहाफ़ी का रोल है। तो मैं काफ़ी अर्से से मैं क्योंकि इस शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं कुछ ज़्यादा नेक आदमी तो हूँ नहीं, तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं इसी रोल के लिए आप जब कैमरा के आगे होते हो यू आर ब्लैंक, यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। आपने सीन पढ़ा होता है, आपको फील का पता होता है,
बट फिर जब डायरेक्टर खुद कैमरा के आगे आके आपको एक स्पॉट बताता है उस तरह से, और फिर आप उसमें एडिशंस करते हो, तो उस लिहाज से भी डायरेक्टर को ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। रियली प्रोफेशनल, बड़ा बेहतरीन, थोड़े से गुस्से वाले हैं लेकिन चलता है, इस काम में इतना होना चाहिए। Very important for such films to come out in Pakistan because it also reflects the kind of diversity that we have in Pakistan, the kind of issues and problems that we face every day. बहुत अच्छी बात होती है कि हम पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाएं, but there is a side of Pakistan which is the reality also. There is both good and bad in it. And also narrative wise, I feel like this film it's been written in a way that it's very interesting. There's so many layers in it, you can't pinpoint के किसी एक चीज़ के बारे में. The film is about so many things at the same time. से बाहर निकल. अच्छा, हमने 150 सीन काट दिया, काट ही दिया. कौन सा? सीन 150. 150? So quite a nice script. और आपको बहुत कम स्क्रिप्ट मिलते हैं जहाँ पे यू रियली वांट टू पुट योर हार्ट आउट देयर फॉर दैट स्क्रिप्ट, एंड you are willing to like extend any kind of help that you can offer. And 3, 2, 1, action! Two people I could not have done this without absolutely are Ishma and Zoya, the other ADs हमारी जो फिल्म की हैं. प्री प्रोडक्शन से लेके आई थिंक आखिरी दिन तक मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनके बगैर कुछ भी कर पाता. they were my backbone, we were each other's backbone. हम जो चीज़ें हमने एक दूसरे को जो है हमने एक दूसरे में डिवाइड की हुई थी, not only did they do that, लेकिन जब उनको beyond the call of duty भी जाना पड़ा है तो they have gone. They were constant just singing. There were a lot of singers on this team. I love that. There were a lot of singers. There were a lot of random dances. Shoaib bhai was even involved in that process as well because I think that he so passionately wanted to get it done right. तो वो हर चीज़, because he is a perfectionist and he wants everything a certain way, which is not to say that he wasn't open to suggestions, because he was open to suggestions. और मुझे बहुत appreciate किया उन्होंने काफ़ी चीज़ें में. अगर मैं मतलब किसी तरह कह रही थी कि शोएब भाई think मुझे ये थोड़ा इस तरह ज़्यादा चलेगा, तो he really appreciated that, and that was very encouraging obviously for people like me on set. Back up! And action. शूट के अंदर ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान शूट था और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल शूट था, लेकिन आई थिंक बहुत टाइटली स्केड्यूल्ड शूट था, जिसके अंदर मतलब आप कोई इस तरह का मार्जिन नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा कोई इधर की चीज़ें कर रहे हो. तो आपको बहुत प्लानिंग के साथ इस चीज़ के ऊपर आना था और हम उस तरीके से आए. शोएब भाई और मैंने बैठ के कोई शूट से पहले भी कोई 10 दिन लगाए, उससे पहले भी बहुत 10 दिन लगाए. बहुत कम टाइम में बहुत एक मतलब बड़ी फिल्म थी ये, कोई इतनी छोटी फिल्म थी भी नहीं कि आप बोलें. मतलब 2, सवा 2, 2.5 घंटे की फिल्म, उसमें कोई 100 से ऊपर कैरेक्टर्स, कोई मेरा ख्याल 20-30 लोकेशंस, उनके सबके सेट्स, उनके सबके फिर आगे से कॉस्ट्यूम. Overall, it also gave me a chance to showcase my SFX work, designing the wounds, the few wounds that I got to, and learning and researching about khadiyan and how the string cuts each single individual, how it would interact with the skin of a child, all of that. It was very fun and refreshing to be able to do that. खड्डी का सेट बहुत अच्छा था और उससे ज़्यादा अच्छा तब हुआ जब हमने इसको ओल्ड किया था और इसको जब टूटा दिखाया था, तो उसमें हमें जाले लगाए और उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई थी हमारी पूरी टीम, और हमें बाहर से भी हमारे 1-2 टीम मेंबर बुलाने पड़े थे जो इसमें जाले लगाने थे और इसको ओल्ड एज दिखाना था इसको. The different kinds of sets, they're
आई थिंक 50-50 प्रोपोर्शन है इंडोर्स आउटडोर्स का इसमें. सो वी क्रिएटेड खड्डियाँ पुराने ज़माने में हैंडलूम्स होती हैं और उनको ढूंढ चुके हुए थे बट उनको प्लेस करना था. That was an interesting kind of thing for me as an art director to not visually see it ever बनते हुए, लेकिन फिर उनको प्लेस किया, थोड़ा रिसर्च किया, उसकी लेआउट वगैरह डिज़ाइन किया. But it's really a very collective kind of effort with my art team and the obviously production team and सबने मिला के. Then we had to go मुरीद के for setting up for a pind का setup. वहाँ पे I never saw that kind of houses जहाँ पे फूलकारी हुई होती घरों के बारे में उनकी ख़वातीन करती हैं. I really like explore my own country in a very different way through this film, so I'm very happy to be part of it. Camera stand by. Roll sound. Speeding. Roll camera. Camera roll. Scene 5. It's been a tough experience. काफ़ी tough locations है हमारी. लेकिन of course it's been worthwhile working with the team. इतनी हमारी hard working team है और उनके साथ इन लोकेशंस में जाके रहना भी, काम भी करना, उधर डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस की हमने और एवरीवन वर्कड हार्ड. तो रियली होपिंग कि जो फाइनल प्रोडक्ट है इट टर्न्स आउट वेल. जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो बहुत मुश्किल रहा. अशरफ भाई की डिमांड, भैंसों को चुप कराओ, फलां गली में कोई बच्चा रो रहा है उसको चुप करा के आओ. पता भी नहीं कितने घर हैं और मुरीद के है और ना सड़कों का पता है, ना घरों का पता है, ना लोगों का पता है. जाके दरवाजे खटखटा के लोगों को चुप कराना. नहीं, शोएब भाई के ऑब्वियसली आई एडमायर हिम ऑन मैनी थिंग्स, जिसमें बेसिकली ऑब्वियसली एक फीचर फिल्म बनाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब. लाइक अब मैंने देखा है कि क्या क्या पीछे क्या क्या मसले होते हैं. एंड ही वॉज लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स विच वॉज अ प्रॉब्लम एज वेल एट पॉइंट्स बिकॉज ही वॉज टू पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स. तो वो होता था कि यार ये चीज़ हो जाए इस तरह से हो जाए, बट यू नो कुछ मसले आ जाते हैं जो हम नहीं सॉल्व कर सकते, बट वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप करो. सारे सच में आपको कल बताऊँगी. सीधे कर All this money. हम सब रात को बहुत बॉन्ड करते थे आपसे इस बारे में, बिकॉज हम सब इतने सैड होते थे, but then we were like यार कल बेहतर करेंगे इसको, और सब और नज़दीक आ जाते थे उससे. तो मुरीद के I think definitely brought us all even closer together. Happy birthday to you. Happy birthday dear Zoya. Happy birthday. मुरीद के इसमें एक और चीज़ ये थी कि because like Namir said as well, there was no certain hierarchy in the team, which made it all so much fun. The hierarchy was इस तरह से कि शोएब भाई was the father figure, ये जैसे भी. So Mureed ke gave us a chance to sneak around and be like, अच्छा pack up हो गया है, तो now we can go somewhere, we can do this. Even though we had like 2 घंटे before call time, but हाँ Mureed ke was really fun in that aspect, I think. मैं तुझसे मिलूंगा, बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे. चक्कर देता जो असल जो कहानी है इस फिल्म की, जो असल बात है, जो इस फिल्म की जो असल जो टाइमलाइन है, वो के जो वो पोस्ट है. पोस्ट ठीक है, आप एक कंफर्ट जोन में बना रहे होते हैं स्टूडियोज़ के अंदर या शायद टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली इट वाज वेरी ड्रेनिंग, इमोशनली इट वाज सो ड्रेनिंग. क्योंकि ज़रा आप जब शूट करते हैं और स्पेशली जब आप एडिट पर जाते हैं तो एडिट में आपको आइडिया होता है कि सम थिंग्स आर वर्किंग, सम थिंग्स आर नॉट वर्किंग. यू हैव टू प्ले विद द टाइम एंड यू हैव टू कंसिडर कि आपने एक कम वक्त में एक अच्छी कहानी कैसे सुनानी है. इनिशियली मुझे शोएब भाई ने स्क्रिप्ट भेजी फ़िल्म की और स्क्रिप्ट काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी. उसकी वजह से ही जिस तरह से वो नैरेटिव शिफ्ट हो रहा होता है उसके अंदर, लाइक आई रिमेंबर अ पॉइंट के एक पॉइंट पे देयर इज़ अ फ्लैशबैक अर्ली ऑन इन द फिल्म. वो जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में तो एंड आई वाज लाइक अच्छा ये बेसिकली इस तरह से हुआ. आई थिंक उसी किसी पॉइंट पे नामवर टोल्ड मी कि दिस इज़ बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट. उस पॉइंट पे ना फिर देन आई अंडरस्टूड कि हाँ इसको एडिट में खेलने का मज़ा आएगा इस फिल्म को, क्योंकि एक तो इसमें लेयर्स भी मल्टीपल चल रही हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हर एक के अपने अपने आर्क हैं, और जिस तरह से
जो जिस इवेंट पे बेस्ड है वो उसकी जो स्टोरी है, जिस तरह से वो टॉस अराउंड हो रही है डिफरेंट कैरेक्टर्स के दरमियान, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। अगर उसको सही तरह से मतलब एडिट किया जाए तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो ये कहानी सुनाई जा सकती है। एक दफ़ा कहानी पेपर पे लिखी जाती है और दूसरी दफ़ा कहानी एडिटिंग टेबल के ऊपर लिखी जाती है। तो इसके साथ कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ कि एडिट टेबल पे कहानी कई दफ़ा लिखी गई और कई तरह से लिखी गई, और अब ज़ाहिर है इसकी एक शक्ल निकली है, तो वो इट विल बी अ सरप्राइज टू इवन द कास्ट एंड क्रू कि हाउ वी आर प्रेजेंटिंग दिस स्टोरी। बट आई एम प्रिटी श्योर दैट मी, प्रोड्यूसर एंड द टीम वर्कड ऑन पोस्ट ऑफ दिस फिल्म आर प्रिटी श्योर दैट दिस film will work for everyone. This will make everyone proud, not only us but will make Pakistan proud in the international cinema as well. Initially it kick started with a short film idea, और जब हमने वो एक छोटा सा एक आर्टिकल था इकबाल मसीह के बारे में, वो हमने पढ़ा और उसकी एक स्टोरी हमने पढ़ी और हमें लगा कि ये बहुत एक एक्साइटिंग टॉपिक है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। फिर निकलने का चले इसको इनिशिएट करते हैं और लेट्स स्टार्ट रिसर्च अबाउट इट, क्योंकि ये एक रियल इवेंट था और एक रियल इंसिडेंट था जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे। तो इसके ऊपर एक रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मेरा ख्याल है कि इसका सबसे एक्साइटिंग पार्ट इस पूरे प्रोसेस का, हालांकि सब पार्ट्स ही बड़े एक्साइटिंग होते हैं, वेदर इट्स राइटिंग प्रोसेस और प्लानिंग, प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, even post or promotions, but the most exciting part for me was at least, or the maximum was the research. और रिसर्च भी ऐसे कि क्योंकि बहुत सारे जो है रियल इंसिडेंट्स पे और जो लोग मौजूद हैं शायद आज भी उनसे जुड़ा हुआ था, तो हमें इस बारे में जानना और उसकी खोज करना और उसके बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम जो बात कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके। तो हमने खैर वो सिलसिला शुरू किया रिसर्च का। उसमें हम ऑन बोर्ड लेकर आए जो दो हमारे राइटर्स अली काज़मी और निर्मल बानो शामिल हैं। इसके अलावा कासिम फरीद जिन्होंने इसकी स्टोरी में सारा सपोर्ट किया। तो छेती काम खत्म करो, बीमार होंगे पाने बहुत कम पाकिस्तान से हमें कोई सोर्स मटेरियल मिल रहा था। बाहर बहुत से लोगों ने काम किया हुआ था, 2 किताबें पब्लिश हुई थी, इकबाल मसीह उनकी जो स्ट्रगल और एक्टिविज्म था। तो रिसर्च मतलब फॉर मी आई वुड से कि द मोस्ट फन वाज व्हेन आई वेंट टू न्यूज़पेपर आर्काइव्स एंड आई मतलब उन सबको बीच में से कहानी निकालना और वो क्या क्या खबरें पब्लिश हो रही थी। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया तो मुझे लगा कि भाई ये फिल्म तो और फिल्मों से मुख्तलिफ है, और क्योंकि मेरा दिल हमेशा यही चाहता है कि आप जो भी काम करें, चाहे वो सराहा जाए या ना सराहा जाए, लेकिन वो अलग हो। तो इस फिल्म की कहानी ने मुझे, जिसे कहना चाहिए, अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने कहा जी मैं इसके ज़रूर जो आपके एडिशनल मुकालमे, जो थोड़े बहुत मुकालमे एक कैरेक्टर के, मैं ज़रूर लिखूंगा। तो हालांकि बहुत थोड़ा सा काम था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि एक तरह से मेरा भी हिस्सा है इस फिल्म में। कहानी का जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा था। इसके बहुत सारे ड्राफ्ट्स बने, बहुत सारे आइडियाज़ आए कि इस कहानी को कैसे सुनाया जा सकता है, किस टूल के थ्रू सुनाया जा सकता है, कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कौन सा एक करेक्टर हो सकता है। तो ये कपल ऑफ आइडियाज वी कीप ऑन डिस्कसिंग एंड एक्सप्लोरिंग, और फिर हमें एक समझ आई चीज़ कि व्हाई नॉट टेल दिस स्टोरी थ्रू अ थर्ड पर्सनस पर्सपेक्टिव। और एक शहबाज का करेक्टर, शहबाज भट्टी का करेक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया, और एक वर्ल्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स जो है वो हमने इंट्रोड्यूस की कि जो है एक जो छोटे से अखबार में एक रिपोर्टर है और वो उसके ऊपर उसकी कवर कर रहा है स्टोरी को, और हाउ ही एनकाउंटर डिफरेंट पीपल और वाक़यात और चीज़ें उसके सामने कैसे अनफोल्ड हो रही है ये सारी कहानी। जैसे कि हम वो कहानी देख रहे हैं वैसे ही वो किरदार वो कहानी देख रहा है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका म्यूज़िक। ये एक म्यूज़िकल फिल्म नहीं है गो के, लेकिन ये कि इसमें फिल्म में 3 गाने हैं और मेरा ख्याल तीनों गाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों गाने एक सिचुएशनल सॉन्ग है जो कि कहानी को आगे बढ़ने में या उस सीन का मैसेज कन्वे करने में या उस बात को कहने में जो हम शायद डायलॉग्स के थ्रू या विजुअल्स के थ्रू नहीं कह पा रहे, वो कहने में बहुत मददगार साबित होते हैं और ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ टाइम्स पर आते हैं फिल्म के अंदर। फिर एक और जो मुझे लगता है बड़ी एक्साइटमेंट मेरे लिए इस फिल्म के हवाले से वो ये है कि उसमें मैंने एक गाना लिखा है, और ये गाना शोएब की फरमाइश पे लिखा है। एक सिचुएशनल सॉन्ग था जो उनको लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा और उनको पसंद आया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह कि उसको राहत फ़तेह अली खान गा रहे हैं
और उसको कंपोज किया है हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जुनैब जाहिद, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये तीनों गानों का फ्लेवर बहुत डिफरेंट है। एक गाना जो है वो फोक इंस्पायर्ड है, दूसरा गाना एक रॉक, सॉफ्ट रॉक कह लें, और तीसरा जो है वो एक गज़ल स्टाइल में गाना है। तो आई होप दैट यू ऑल विल लाइक इट एंड एंजॉय इट।